Hello students, welcome to unit number 13, amines, and our current topic is 13.6, chemical reactions. As we know that in our prior lecture, we continue with our chemical reactions regarding to amines. So last to last lecture means it means that lecture number 8, at that time we represent the chemical reactions about the nature of the amines or basicity of amines. Then we studied about the alkylations, acylations and carbylamine test. And in last sessions we continue with our chemical reactions point with reactions with nitrous acid and reactions with benzene sulfonyl chloride, means Hinsberg reagent, or sometimes called as a Hinsberg test. Or this test is for the separation of primary, secondary and tertiary amine. Now today we start with a new point, is the number 7, is the electrophilic substitution reaction. And this electrophilic substitution reactions topic is definitely strictly connected to the aniline, because we know that aniline is aromatic in nature, and due to this NH2 group, so the effect, the effect in it means that they gives a typical electrophilic substitutions reactions of the aromatic ring. Okay, so once again here we start with we know that the NH2 group strongly activate, right? We know that it's an electron donating group, so they strongly activates the aromatic ring, through delocalization of the lone pair of electrons of the nitrogen atom over the aromatic ring. That we already display in our resonating structure of aniline 1 to 5 resonating structures. So we know that the lone pair of nitrogen, which can be delocalized over the system at ortho and para positions, we definitely observe that there is a increase of electron density over ortho and para. So due to this phenomena, so electron density increases more at ortho and para positions. So as compared to meta, right? As compared to meta positions, because electron density means the delocalizations of electron over ortho and para is compared to meta is greater in nature. Okay, so that's the meaning that NH2 group, this group or NH2 as a functional group is an ortho para directing group. Okay, fine. Now next what? So due to the strong activity, activating effect of the NH2 group, right? This aromatic ring, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एरोमेटिक रिंग है, क्योंकि उसने एक्टिवेटिंग ग्रुप ज्यादा कर दिया, यानी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई. अभी बाहर से हमको इलेक्ट्रोफाइल, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो हम जैसे उसके पास हम इसको एंटर करेंगे तो वो कहां पे जाएगा, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही चला जाएगा, बिकॉज द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस हैविंग अ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर टू द मेटा, राइट. तो एरोमेटिक जो रिंग है हमारी, मैं फिर से बोल रहा हूं, ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द NH2 ग्रुप, एरोमेटिक जो रिंग है हमारी, या हम इसको बोल सकते हैं एरोमेटिक एमाइन, सॉरी
एरोमेटिक जो भी एमाइन्स है हमारे पास, दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions readily। जो वहां पे वो substitution reactions है वो अच्छी तरह से दे पाएंगे। समझ में आ रहा है? और एक और दिक्कत भी यहां पे हो रही है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू stop the reaction at the monosubstitution stage। यानी वो मोनोसब्स्टिट्यूशन पे नहीं रुकेगा, वो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे हमें यहाँ पे इस तरह से भी मैं दिखा सकता हूं कि यूजुअली क्या होगा, तो कि यूजुअली हम ऐसे इसको देख पाएंगे, द रिएक्शन होगा, द रिएक्शन proceeds to 2, 4, 6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एमाइन की तरफ चला जाएगा। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एमाइन से वहां तक चला जाएगा, यानी वो नॉन स्टॉप चला जाएगा, मोनो पे नहीं यहां पे रहेगा। So the high reactivity of these aromatic amines towards electrophilic substitution reactions is due to the fact that, so हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैंने अभी आपको बोला था कि यूजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगे तो वो स्टेबिलाइज द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है उसको स्टेबिलाइज करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर से मैं बोल रहा हूं। सो अभी क्या होगा, क्योंकि वो जो लॉन पेयर और कार्बोकेटाइन ऑर्थो और पेरा पोजिशंस में साथ में होने की वजह से, तो वो उसको ज्यादा उसको क्या बोल रहे हैं कि उसको स्टेबिलाइज कर पा रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे ऑर्थो पोजिशंस में जैसे कोई ब्रोमीन का अटैक होता है तो क्या होगा कि जो NH2 के लॉन पेयर और उसके बिल्कुल बगल में जो कार्बोकेटाइन है उसके बीच में अच्छी तरह से स्टेबिलिटी हो जाती है। इस तरह से पेरा में भी क्या होगा, पेरा में ब्रोमीन है तो वो NH2 और जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है उसके बीच में, क्योंकि वो बहुत नजदीक होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, राइट। यानी ऑर्थो ब्रोमिनेशन करेंगे या पेरा ब्रोमिनेशन करेंगे तो वो बहुत बढ़िया होगा। अभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन इस तरह से भी यहाँ पे आ रहा है कि सर जी हमें तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही चाहिए, हमें तो ये इतना आगे बढ़ना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि उसकी जो एक्टिविटी है एमिनो ग्रुप की, वो हमें थोड़ा इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम कंट्रोल किस तरह से कर पाएंगे? तो कंट्रोल करने के लिए हम उसको एसाइलेशन में डाल देंगे। देखिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे इस तरह से भी दिखा रहा हूं। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। कई बार ऐसा थोड़ी जरूरी है कि मुझे ट्राई ही मिलेगा तो मुझे मोनो में जाना ही नहीं है। सो दिस प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड, लेकिन हम तो जानते हैं कि NH2 ग्रुप है वो तो हाईली एक्टिव है। सो हम क्या करेंगे, द एक्टिवेटिंग ऑफ द जो भी है, तो इसके लिए हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं। द एक्टिवेटिंग जो इफेक्ट है, किसकी है एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द NH2 ग्रुप, ऑफ द जो NH2 ग्रुप की एक्टिवेटिंग इफेक्ट है विच इज रिड्यूस्ड और कंट्रोल्ड। हम इसको रिड्यूस भी बोल सकते हैं या कंट्रोल भी बोल सकते हैं बाय एसाइलेशन। हम पहले क्या करेंगे, एनिलीन का एसाइलेशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एसिटाइल ग्रुप होगा या जो एसाइल ग्रुप है, तो वो हमें मालूम है कि द एसिटाइल ग्रुप बीइंग वो किस तरह से है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इसकी ग्रुप होने की वजह से दे अट्रैक्ट्स द लॉन पेयर। तो वो क्या होगा, लॉन पेयर जो भी है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर ऑफ electrons on the nitrogen atom, on the nitrogen atom towards itself, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से जो उसके नाइट्रोजन के लॉन पेयर है ना, वो अपनी तरह खींचेगा, यानी फिनाइल रिंग में नहीं चला जाएगा।
तो इससे क्या होगा कि इससे एज ए रिजल्ट वो हो जाएगा ना कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी है मेरे पास इज नॉट एक्सक्लूसिवली, मैं इस तरह से बोल रहा हूं यहां पे, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर डोनेशन, राइट, फॉर डोनेशन टू द बेंजीन रिंग, पहले क्या था, एक्सक्लूसिवली बेंजीन रिंग में ही चला जा रहा था, इसलिए वो ऑर्थोपेरा पे डेंसिटी ज्यादा बढ़ा रहा था। अभी क्या होगा कि वो जो है एक्सक्लूसिवली नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से ये होगा ना, तो जो रिंग है, बेंजीन रिंग है, तो उससे एक्टिवेटिंग, तो क्या होगा, सो द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ एमिनो ग्रुप, इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, वो क्या हो जाएगी, इज रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सो दिस मेथड इज नॉन एज, उसको हम क्या बोलेंगे आपको मालूम है? ये जो मेथड है तो उसमें कई बार हम इसको लॉक अनलॉक भी बोलते हैं, या दिस मेथड इज नॉन एज प्रोटेक्शन ऑफ द एमिनो ग्रुप। इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन या एसाइलेशन भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ही डालेंगे। और इससे क्या होगा, तो हमने तीसरी बार मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, सो विच कैन बी यूज टू कंट्रोल, यहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशंस की वजह से क्या है, तो टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डायन ट्राई, तो इससे क्या होगा, एंड टू प्रिवेंट, जो प्रिवेंशन होगा, राइट, द फॉर्मेशन ऑफ डाई एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, या सब्स्टिट्यूशन ही हम बोलेंगे, राइट, प्रोडक्ट्स। तो ये पॉइंट थोड़ा मैंने अपने आप को समझाया हुआ है। मैं आपको इसका एक यहाँ पे एग्जांपल भी देना चाहता हूं। देखिए मेरे पास है ना यहाँ पे N ये लॉन पेयर थी, अभी मैंने उसकी बिल्कुल बगल में, जैसे मैंने यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दिया हुआ है, तो हमें मालूम है क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा, तो ये लॉन पेयर यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा। तो उसकी जो रेजोनेटिंग इफेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे मिल रही है। ये N+ है, यहाँ पे क्या हो गया है, डबल बॉन्ड है, ये C है, ये CH3 है, और यहाँ पे क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो प्लस माइनस का इफेक्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन देखिए नाइट्रोजन पे भी क्या हो गया है, प्लस हो गया है। जहां पे लॉन पेयर इजीली अवेलेबल थे वो अभी शिफ्टिंग होने की वजह से जो उसको कंट्रोल कर दिया है, या उसको इसकी जो इफेक्ट थी, जो इसकी एक्टिवेटिंग इफेक्ट थी, उसको मैंने रिड्यूस कर दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे देख पाएंगे। चलिए अभी इसके अंदर जो हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं वो है हेलोजिनेशन। यानी हम हेलोजिनेशन की बात यहाँ पे करना चाहते हैं। तो अभी हेलोजिनेशन क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बोला था कि जैसे मैं एक आपको रिएक्शंस यहाँ पे दिखा रहा हूं। देखिए आप, मेरे पास है यहाँ पे क्या है, एनिलीन है, और एनिलीन की मैं ब्रोमीन वाटर या एक्वियस वाटर के साथ मैं उसका रिएक्शंस करवाऊंगा। अभी देखिए मुझे मालूम है कि ये NH2 ग्रुप है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उसको कंट्रोल नहीं है, यानी वो डायरेक्टली ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में चला जाएगा। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में जाने की वजह से मुझे एक साथ 3 ब्रोमीन ऑर्थो और पेरा में चले जाने की वजह से मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे ये कंपाउंड कुछ इस तरह से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन के वाइट प्रेसिपिटेस मुझे यहाँ पे मिलेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए मैं यहाँ पे एनिलीन से मैं आपके साथ बात कर रहा था। सो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस एमिनो ग्रुप, तो यहाँ पे हेलोजिनेशन यानी ब्रोमिनेशन ऑफ एमाइन्स अकर्स वेरी फास्ट। So this bromine enters the para and both the ortho position even in the absence of catalyst। मैंने यहाँ पे catalyst भी नहीं डाला हुआ है,
जैसे मैंने एनिलीन का रिएक्शंस करवाया ब्रोमीन वाटर के साथ, तो मुझे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स एक साथ मिलेंगे। अभी मुझे क्या करना है कि सर जी मुझे तो ये 3 नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक ही मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ही चाहिए। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो फर्स्ट एमिनो ग्रुप इज एसाइलेटेड, यानी मुझे इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो सेकंड वाला है वो मैं यहाँ पे आपको यहां से दिखाना चाहता हूं। मेरे पास क्या है? तो कि मेरे पास यहाँ पे NH2 है, यानी एनिलीन है। एनिलीन का मैंने यहाँ पे रिएक्शंस करवाया है। किसके साथ करवाया है? देखिए CH3CO ट्वाइस हो या CH3COCl कुछ भी ले सकते हैं। हमें मालूम है यहाँ से एसिटिक एसिड निकल जाएगा और मेरी जो यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी? तो वो मुझे NHCOCH3 मिलेगी। NHCOCH3 को हम क्या बोलेंगे? एसीटेनिलाइड, एसीटेनिलाइड हम बोलेंगे। ये मैंने अभी क्या हुआ, मैंने उसका प्रोटेक्ट कर दिया है। अभी जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर है ना, वो एक्सक्लूसिवली फिनाइल रिंग की बजाय दोनों तरफ जा सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अभी मैं इसका ब्रोमिनेशन कर रहा हूं। नाउ द ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो मुझे मालूम है कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होने की वजह से देखिए यहाँ पे जो NHCOCH3 था तो एक कहां पे चला गया है? ब्रोमीन में, और एक कहां पे चला जा रहा है? तो कि ऑर्थो में। तो मैं NHCOCH3 यहाँ पे ऑर्थो में भी चला गया है। तो मुझे यहाँ पे जो मिलेगा प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरा ब्रोमो एसीटेनिलाइड बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो ब्रोमो एसीटेनिलाइड बोलेंगे। तो ये मुझे इसका क्या मिल गया है? मिक्सचर मिल गया है। और ये मिक्सचर का जैसे मैं उसको हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं H+ और H2 के साथ, इसका हाइड्रोलिसिस मैंने कराया है क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए फिर से, तो मैं उसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस में करवा देता हूं। तो यहां से एसिटिक एसिड निकल जाएगा, CH3COOH निकल जाएगा, और मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2 और पेरा पे ब्रोमीन है। सेम वे देखिए यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे भी NH2 है और यहाँ पे ब्रोमीन है। तो ये जो है हमें मालूम है, उसको हम बोलेंगे पेरा ब्रोमो एनिलीन है। और ये क्या है? ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन है। तो मैंने मोनो सब्स्टिट्यूट में लाने के लिए मैंने पहले प्रोटेक्ट किया था। ये जो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मिल रही है ये मेजर है। पेरा इज अ मेजर कंपेयर टू दिस इज माइनर। यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस होने की वजह से थोड़ा माइनर है, और ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मेजर मिल रही है। समझ में आ गया? फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अ मोनो हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव्स इज रिक्वायर्ड, तो एमिनो ग्रुप इज फर्स्ट एसिटिलाइटेड एंड देन हेलोजिनेशन ऑफ द रिंग इज कैरिड आउट. So after the halogenation, the acetyl group is removed by hydrolysis, so we get a mono halogenated aniline. Clear? सेम उसका नाइट्रेशंस भी हम देखना चाहेंगे। तो अभी जो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक का जो पोर्शंस था इलेक्ट्रोफिलिक का, यहाँ पे हम दूसरा लगा रहे हैं, वो है नाइट्रेशन। देखिए आपको पता होगा कि नाइट्रिक एसिड, जैसे कि नाइट्रेशन के लिए मुझे नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो नाइट्रिक एसिड इज नॉट ओनली, कहीं बच्चे को ऐसा होता है कि इज नॉट ओनली अ नाइट्रेटिंग एजेंट, यानी इसका मतलब ये सिर्फ NO2 नहीं दे पा रहा है, बट इट ऑल्सो एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। समझ में आ रहा है? ये नाइट्रेटिक एजेंट तो है ही, लेकिन इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना +5 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला जा रहा है, यानी वो नीचे ही आएगा क्योंकि वो अपना रिडक्शन करेगा, सामने वाली पार्टी का ऑक्सीडेशन करेगा, तो इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम क्या करेंगे, जैसे डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक एमाइन इज नॉट यूजफुल रिएक्शंस, क्योंकि अब जैसे हम उसको डायरेक्ट नाइट्रेशन में चले जाएंगे, सो इट्स ऑफन गिव्स अ टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स अलोंग विद सम नाइट्रेशन प्रोडक्ट्स टू। लेकिन हम जैसे उसको अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में ले जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में इसको करवा रहा हूं, तो विच गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पेरानाइट्रो। देखिए यहाँ पे एक दिक्कत क्या आ रही है ना, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, समझिए आप। मेरे पास यहाँ पे एनिलीन है, राइट, और ये एनिलीन की प्रोसेस मैं किसके साथ करवा रहा हूं, अब देखिए
मैंने फर्स्ट लिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, नेक्स्ट है मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और नियर अबाउट 293 केल्विन, यानी टेम्परेचर मैंने थोड़ा कम रखा हुआ है। तो अभी मुझे मालूम है कि वो ऑर्थो और पेरा सभी पोजीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे NH2 तो था ही, तो यहाँ पे क्या आ गया NO2, यानी ये पेरा नाइट्रो में है, पेरा नाइट्रो एनिलीन में चला गया है। ये जो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मिल रही है वो 51% मिल रही है। दूसरी जो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं, जैसे मेरे पास एक प्रोडक्ट और है जो मेटा पे चली जा रही है। ये सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पे चल रहा है कि मेटा में क्यों जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन उसका परसेंटेज है ना वो 47% प्रोडक्ट मिल रही है मुझे यहाँ पे, और जो ऑर्थो वाला था वो सिर्फ 2% ही मुझे यहाँ पे मिल रही है। यानी ये तो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप थे, तो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के बावजूद वो क्यों इस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसको हमको देखना चाहिए कि बिकॉज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लार्जर अमाउंट ऑफ दिस अनएक्सपेक्टेड मेटानाइट्रो एनिलीन, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तरह से होगा। देखिए मैं आपको समझाना इस तरह से भी चाहता हूं। मेरे पास है ना, इसमें जो एनिलीन था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो एनिलीन है वो बेसिक होते हैं और HNO3 क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ये दोनों के बीच में यहाँ पे प्रोसेस होके यहाँ पे पहले एनिलीनियम आयन यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि एसिड बेस का प्रोसेस है। तो ये क्या मेरे पास पहले मिलेगा, एनिलीनियम जो मेरे पास आयन है वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। आपको समझ में आ गया होगा, ये एनिलीनियम आयन यानी NH3+, यानी इसके पास लॉन पेयर तो दूर की बात है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो तो फिनाइल में से खींचेगा, यानी ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से वो तो अंदर से खींचेगा, तो कहां से मिलेगा, ऑर्थो पेरा में से ही मिलेगा, यानी मेटा में से कम मिलेगा। तो ये मेटा में थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो क्या हो गया है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया है, राइट। इसकी वजह से आपको यहाँ पे 47% क्या मिल रहा है, मेटा नाइट्रो एनिलीन मिल रहा है। अभी क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि सर जी मुझे तो ये चाहिए ही नहीं है, मुझे तो जो नेचुरल वाला था ऑर्थो पेरा वही चाहिए और मोनो सब्सटीट्यूटेड ही चाहिए। तो सेम फिर से हम अपनी स्टोरी शुरू करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये मेरे पास एनिलीन है और वो एनिलीन का हम पहले एसिटाइलेशन कर देंगे, यानी इसको प्रोटेक्ट कर देंगे उसके NH2 ग्रुप को। तो इसके NH2 ग्रुप को एसिटाइलेशन से प्रोटेक्ट करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है NHCOCH3, यानी हम उसको क्या बोलेंगे, एसीटेनिलाइड, ये मिल गया। अभी हम उसका नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से उसका नाइट्रेशन करेंगे नियर अबाउट 288 या 293 केल्विन में, राइट। तो इसको न्यूक्लियर नाइट्रेशन भी हम बोलेंगे। तो उसका जो रिएक्शन है वो ऑर्थो और पेरा में अब चला जाएगा, क्योंकि अभी एनिलीनियम आयन नहीं बना हुआ है। आपको समझ में आ गया, यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रो और यहाँ पे पेरा नाइट्रो। पेरा मेजर है, देखिए आप यहाँ पे NHCOCH3 था और यहाँ पे ये आ गया, तो इसको पेरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड बोलेंगे, उसको ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड बोलेंगे। ये मेरे पास क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ये मेरे पास माइनर है। फिर मैं उसका क्या कराऊंगा, ये दोनों का एक साथ में मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस है मेरे पास, आपको मालूम होगा एसिटिक एसिड यहाँ से निकल जाएगा और जो मेरे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ मुझे इस तरह से मिलेगा। देखिए NH2 है और NO2 है, सेम वे मुझे मालूम है यहाँ पे भी NH2 और NO2। ये पेरा नाइट्रो एनिलीन है, ये ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन है, ये मेजर है और ये माइनर है। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये कुछ नाइट्रेशंस की बात मैंने यहाँ पे आपको समझाई हुई है। अभी जो तीसरा वाला पोर्शंस में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, वो जो पोर्शंस है उसको हम बोलेंगे सल्फोनेशन, यानी SO3H ग्रुप मुझे यहाँ पे ले जाना है। यहाँ पे NH2 ग्रुप का जो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, देखिए मैं आपको एनिलीन का सल्फोनेशन डायरेक्टली दिखाना चाहता हूँ।
मेरे पास यहाँ पे NH2 है, उसका मैंने सल्फोनेशन H2SO4 के साथ मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले, क्योंकि NH3 ये प्लस आ जाएगा HSO4 माइनस, यानी ये हम देख रहे हैं वो है एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीन है, हाइड्रोजन है और सल्फेट है। ये मैंने किसके साथ रिएक्शंस करवाया है, एनिलीन के साथ। फिर उसका मैं नियर अबाउट 455 या 475 केल्विन के साथ, तो यहां से पानी निकल जाएगा ये सोल्ट में से, और हमारा जो SO3H ग्रुप है वो चला जाएगा पैरा पोजिशंस में, क्योंकि वहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से वो यहाँ पे चला जाएगा। उसको ही हम क्या बोलेंगे, तो कि उसको हम बोलेंगे सल्फानिलिक एसिड। लेकिन ये देखिए एक ही कंपाउंड में बेसिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप होने की वजह से वो यहाँ पे सॉल्ट भी बना रहे हैं, वो यहाँ पे सॉल्ट बना रहे हैं। तो जो साथ में एक ही कंपाउंड में ये सॉल्ट का ये प्रोसेस मुझे यहाँ पे दिखेगा, उसको हम डाइपोल, यानी हम इसको बोलेंगे डाइपोलर यहाँ पे हो गए ना। देखिए यहाँ पे SO3 माइनस है, तो उसको सल्फानिलिक एसिड क्या बोलेंगे, हमने मालूम था ना आपको, बायोमोलिक्यूल में मैंने आपको दिखाया था एमिनो एसिड्स में। इसको हम ज्वीटर आयन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ज्वीटर आयन बोल सकते हैं। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि aniline, when aniline is treated with concentrated H2SO4 at 455 to 475 Kelvin, so it gives a para-amino-benzene sulfonic acid. This is para-amino-benzene sulfonic acid is called as a sulfanilic acid. And this reactions is believed to occur through the amine salt. जो यहाँ पे amine salts में से ही वो आगे जा रहा है। लेकिन हमें मालूम है कि sulfanilic acid contains both an aliphatic acidic SO3H as well as basic NH2 group. So therefore it's quite understandable that sulfanilic acid exists as an internal salt. क्यों हो रहा है इंटरनल सॉल्ट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट NH2 ग्रुप है मेरा, टू एक्सेप्टेड द प्रोटॉन फ्रॉम सल्फानिलिक एसिड। सो सच अ टाइप ऑफ दिस इंटरनल सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज एन डाइपोलर आयन, या हम उसको क्या बोलेंगे, ज्वीटर आयन भी बोल सकते हैं। सो इसकी वजह से क्या होगा कि ये ज्वीटर आयन में हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि ड्यू टू दिस ज्वीटर आयन कैरेक्टरिस्टिक सल्फानिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होने की वजह ये ज्वीटर आयन है। प्रैक्टिकली ये इनसॉल्युबल इन वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी इनसॉल्युबल होते हैं। अभी कई बच्चे को ये होता है कि सर जी हमें बुक में नहीं बताया हुआ है, पर इट्स अ वेरी गुड इंटरमीडिएट, ये है ना बहुत बढ़िया इंटरमीडिएट है। किसके लिए बढ़िया इंटरमीडिएट है, सो इन द मैन्युफैक्चर फॉर डाइज, जैसे मैंने डाइज इंडस्ट्रीज है एंड ड्रग्स इंडस्ट्रीज में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। जैसे सल्फानिलिक एसिड की, जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा सल्फा ड्रग्स, ये सल्फा ड्रग्स में इसका मेजर पोर्शन चल रहा है, क्योंकि सल्फानिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर वेरी मच यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेल नोन सल्फा ड्रग्स। आपने एक ड्रग्स में यहाँ पे जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको हम सल्फाथाइजोल बोलेंगे, सल्फाथाइजोल है। फिर एक होता है उसको हम बोलेंगे सल्फाडायजीन, सल्फाडायजीन। एक और है यहाँ पे, मैं आपको मेन में नहीं बताता हूं, सल्फापिरिडीन एक्सेट्रा। ये इसी तो कई ड्रग्स है। वो क्या होता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसके सामने ये वर्क हो रही है, सो विच इज वाइडली यूज अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए ये बहुत बढ़िया ड्रग्स यहाँ पे दी गई है। तो ये कुछ मैंने आपको सल्फोनेशन के बारे में बात की थी। अभी मैं लास्ट में यहाँ पे आपको बात करूंगा, वो है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट्स में हमें मालूम है कि अगर फ्रीडल और क्राफ्ट्स की बात करेंगे तो अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है आप देखिए, मेरे पास एनिलीन है, एनिलीन के पास लॉन पेयर है, और इसके लिए तो मुझे AlCl3 जैसे लुईस एसिड कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपना लॉन पेयर ही ये लुईस एसिड को दे पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा C6H5NH2 AlCl3 यानी ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया है। फिर से ये जो है हमेरा वो क्या है, लुईस बेस है। AlCl3 हमेरा क्या है, तो क्या लुईस एसिड है। तो दे कंबाइंड विथ ईच अदर और दे फॉर्म अ सॉल्ट। उसको तो AlCl3 का यह फंक्शन नहीं था, लेकिन ये दोनों साथ में, अभी तो
मिथाइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड तो कुछ मैंने ऐसा लिया भी नहीं है. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन एटम, ये सोल्ट में होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए. ये देखिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए हैं. तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसका मतलब क्या हुआ, दे रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग एंड तो उसकी वजह से वो अल्काइलेशन या एसाइलेशन ऐसी कोई भी प्रोसेस कर नहीं पा रहे हैं. राइट. सो वंस अगेन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इट रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग एंड हेंस एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शंस. तो कुछ इस तरह से का कॉन्सेप्ट था जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मिलेंगे तो वो डायज़ोनियम सॉल्ट की तरफ हम अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू वेरी मच.